ज़रूरी है सब लोगों को जो इस क्या हो रहा है सर, कहीं बात हो सकती है सर, मैं इस म्यूज़िक डायरेक्टर से मिल सकता हूँ सर, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ सर। और चाहते हुए भी कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता इसका कि यही जो परसिस्टेंस है उसने इसे आज काम दिलाया है, इज वर्किंग हार्ड। तो आप लोग सब एक बात याद रखिए कि इस संघर्ष के अंदर बहुत सारे मोमेंट जो है आप बहुत सालों से देख रहे हैं फिल्मों में और टेलीविजन में, तो ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से ये जो जर्नी है इसके अंदर ये जो दुश्वारियां हैं ये तो एक मस्त है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलने या कहीं से भी निकलने के बाद काम आपके इंतजार करेगा तो ये फैंसी है। वो चाहे अमिताभ बच्चन रहे हो चाहे कोई भी रहा हो, ये संघर्ष तो लाजमी है, तो उससे आप ना घबराएं। ये सब लोग डेविड भी हमको लगा कि हमको कुछ करना चाहिए, मैं लगता मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। बाकी सब ठीक है, भैया बेस्ट टाइम फॉर एजुकेशन स्कूल नाउ, बट वन थिंग इज हमारे टाइम तो इंडस्ट्री में घुसने में या फिल्म लाइन, मैं टेलीविजन में चला गया करके, मैं आई स्टार्ट वर्किंग एज एडिटर इन टेलीविजन, तो हाँ क्या आज तो इतना मतलब आज you have made you on the net, you watch everything available there, you can do everything, there's so much everything. लोग छोटी छोटी फिल्में बनाने लगे हैं, तो there is plenty of jobs, but करने वाला चाहिए। अभी भी आप सो के उठ रहे हैं, हम 5 बजे 6 बजे उठते हैं, you have to do that। और जहाँ तक आजकल के एक्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, फील करते हैं, गुड फॉर द बॉडी। बट ऋषि कपूर हमारे लिए एक्टर होते हैं, मेरा बेटा एक्टिंग आता है, कहते हैं तो डम्बल लोग खाते, मैं भी शाम को उठाता हूँ खेल के लिए। So all happy coming, the long travel I came here, and I'm happy being with all of you. Give me great pleasure. So many people. I want to ask you some questions. Yes, I will just. There is a question I have for you. They always say that a good editor is always becoming a good director. Yes. Why? Today, even if you ask me my first profession in editing, I am an editor. I have become a good director because I am an editor. Because my confidence on the set on the first day was, I was so sure what I wanted. तो बोला इतना वर्क नहीं ठीक है, यहाँ कट हो गया, एक्टर फंक्शन ऐसे कुछ बनाता है। You know the craft is very strong, and editing is something which gives you pace in the cinema, gives you energy, how you can play, how you can play with music, background गाना, बहुत सी चीज़। That's why director like David Dhawan does not shoot more than 50 to 60 days. Completes a film because he exactly knows कि इतना ही रहेगा। More than that, if you are shooting and you are spending money unnecessarily, which is I think is a very important. Hey, I always call myself an editor, but that's profession I cannot. लोग बोलते हैं कि एडिटिंग से क्या, मुझे तो मेरी इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी पिक्चर है जो एडिटेड है ऑलरेडी है, मैंने आई स्टिल कैन डू। दैट इज माय कॉन्फिडेंस। एंड अ बैड एक्टर कैन बी गुड, I must tell you that. But his lines can go on the other side. You avoid that. And such big actors, I have done what not big actors this time. I don't want to name them, but it has been good and we have done it. But I tell you one thing, industry makes you character artists are the best ones. They are ready, not all of the workers. Amrish ji ho, Aadar Khan ji ho, Paresh Rawal ho, all of them, they are मतलब par excellence. हमारे हीरोइन लाइन ढूंढते हैं, right there. The actors are, that we save the film because of this character. So, being a director, how do you select your actors? For example, you have a project. So, what is the basis on what is most important for you in an actor? When you Obviously, he has to be a damn good actor to have film. My cinema is not an easy cinema.
It is very spontaneous. There's a lot of improvisation in it. And comedy, comedy is not easy. Comedy is not making laugh us saying that poker face comedy, that's how you develop your life. There's so many to work with. How do you feel? So definitely my first memory. At times I've been very selfish. Where an actor couldn't perform something I could change it. But मेरा काम था. Why this motto is always don't actor to actually. I want to go there something. So it shows, you know. So उसके बाद जब दूसरे बार जाता था मुझे लगता है कितना देर था. So I think I'm taking a lot of time. शशि कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? एक तो मालूम है शशि के बारे में बोला ये सबसे ज्यादा शर्मिंदा होते हैं इस तरह ये उस टाइम आवाज नहीं निकलती इंस्टीट्यूट में और अब तो गाने भी गाता है. Thank you, David. Now over to Rohit. I think this has been a very informative, I think it's very educational for us to know what's happening in the industry. Successful actors in their own way. Today, I take this opportunity to felicitate three of them through ITA. I would request Mr. Devaji to come here and hand over this awards to them, please. The senior most actor we have here is Mr. Basant Kumar Modi. Can we have him here? Mr. Basant Kumar Modi. मैं इनकी स्पिरिट के बारे में बात कहना चाहूँगा. जब ये ऑडिशन के लिए आए तो इनकी शक्ल देख के मैंने कहा आपकी शक्ल तो अच्छी है लेकिन आप किस उम्र में क्यों एक्टिंग करने जा रहे हैं. इन्होंने कहा मैं मर्चेंट नेवी में था और जिंदगी में हमेशा एक्टिंग करना चाहता था. आज मेरे पास पैसा भी है, इनसिक्योरिटी नहीं है तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ. एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट and he got the job also. So congratulations to your spirit. मेरे गुरुदेव यहाँ बैठे हैं. देखें वो शुक्रिया कहने की बजाय आज जस्ट से थैंक यू. The second student is Miss Asha Kogle. Sasha here. और ये आदमी को लगता था कि यार उम्र जो है इट्स ओनली इन माइंड. So please. Hello. This was my ambition in childhood which I could not get. ये इस उम्र में जो मिला है वो मेरे लिए बहुत ही कुछ है. और हमारी मैडम निमी जी, शशि जी, हमारे सब स्टूडेंट्स बहुत सपोर्ट किया है मुझे, इसलिए बहुत 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 थैंक्स. मैं हमेशा याद करती हूँ निमी जी को, खास में याद करती हूँ. इतना मेरे को मॉडल सपोर्ट किया है कि कुछ जवाब ही नहीं है. थैंक यू. Sir, give me your 2 lines.
student. As a lead, Devin Johnson. Good evening, everyone. Good evening, sir. I'm Jermaine Coutinho, and I would like to take this opportunity to tell everyone and to say thank you to Shashi sir, because who I am is because of him. I've been really successful in my life, and whatever I've done actually so far, it's all because of this institute. I've learned a lot, and I'm really proud, and I would like to thank this institute so much. What did you do? I've actually acted in a few serials and Bollywood films. I've done a small role in the movie Shamita. I've done serials like Balika Vadhu and Crime Patrol also. नमस्ते सर, मैं अपना एक्सपीरियंस इतना बताना चाहूँगी. मैंने I had come to join this institute. शशि सर ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि you should go with your passion and your personality will change, and it has. Good evening, everybody. My name is Jeet Baer. Thank you, Shashi sir. Thank you, David sir. Thank you, Anuradhan ma'am. Thank you, Grace ma'am. It's not I, but इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. I love ITA. Yes. ITA ने मेरी लाइफ सिर्फ चेंज करी. आज मैं ITA की वजह से बहुत कुछ कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ. जो है चंडीगढ़ से आई थी और उन्होंने जैसे आपको बताया कि डांसिंग सीखना चाहती थी एंड शी इज एन एक्टिंग कोर्स एंड शी इज डूइंग वेरी वेल एंड आई सी अ ग्रेट फ्यूचर इन Malika. I just want to thank Anu ma'am, Shashi sir, Javed sir, and everybody in the staff here, because it's meeting them again and again builds my confidence, and I tell myself this is not it, and I will go back and do more auditions. Thank you so much. सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के सेलिब्रेशन के बारे में? ये हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है ITA का और इसमें हम अपने एक्स स्टूडेंट्स को बुला के उनको हम प्रोत्साहित करते हैं कि आगे जाके फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री में किस तरह काम करें. उनके पूरे साल का लेखा जोखा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रिज है हमारे और स्कूल उन स्टूडेंट्स के बीच में वो बना रहे, ताकि वो ये महसूस ना करें कि वो अकेले हैं संघर्ष के वक्त में. वही मकसद था इसका. सर क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब ऐसे में देखने में काफ़ी टैलेंट देखने को मिलते हैं अलग अलग एज के लोग. टैलेंट को सिर्फ एक ही टिप है कि भैया लगे रहो मुन्ना भाई. इसके अलावा जैसे हर स्पीकर ने एक ही बात कही, हमारा सबका एक्सपीरियंस यही है कि इस लाइन में किसी भी क्षेत्र में आप काम करें उसमें आपको लगे रहना पड़ता है. तो अगर आप जल्दी निराश होके बैठ जाएंगे घर पे तो कोई काम नहीं देगा. इसके लिए कुछ एज मैटर्स कुछ नहीं करना. कोई एज कुछ मैटर आपने देखा कि 60 साल की उम्र के और रिटायर हुए लोग भी काम करते हैं. इट्स ये सब पैशन का बिजनेस है. अगर आपके पास पैशन है तो उम्र उसके अंदर कोई मायने नहीं रखती. थैंक यू सर. थैंक यू. भाई आप अंदर सर ITA एनुअल फंक्शन है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सेलिब्रेशन के बारे में? मैं आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ. हालांकि शशि जी और अनु जी मेरे बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स हैं और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये लोग इतना अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पे चला रहे हैं. और यहाँ पे जो भी आज स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उन लोगों को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यंग स्टूडेंट्स नहीं हैं, यहाँ पे हर उम्र के लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं. और उनको देखकर बहुत इंस्पिरेशन मिली कि
लाइफ में जो कभी हार ना मानने वाले लोग हैं वो लोग यहाँ पे हैं और उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी ऐसी इच्छाएं जो शायद 25-30 साल पहले पूरी नहीं कर पाए वो यहाँ पे कर रहे हैं और उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और आज उन्होंने ये भी दिखाया कि आज एक स्पेशल चाइल्ड को उन्होंने अपना पहला स्टूडेंट बनाया, तो वो देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और मैं इसके लिए ITA को, शशि रंजन को, अनुरंजन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। टैलेंट देखने को मिलता है ऐसे जी। से। और एज एन एक्टर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? एज एन एक्टर मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग अच्छी जगह से बहुत ज़रूरी है और ITA का जो ये स्कूल है यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। इनके लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एक्टिंग सीखने आए हैं उनके विचारों को, उनके स्किल्स को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और उनको एक डायरेक्शन दी जा रही है और वो लोग आगे जाके और भी कॉन्फिडेंट होकर अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप क्या कहना चाहेंगे मैम आज के सेलिब्रेशन के बारे में? ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हुई। एक होम वेंचर है और मेरे डैड का हमेशा से एक ड्रीम था कि वो अपना एक इंस्टीट्यूट खोलें। सो जब मैंने आज सारे स्टूडेंट्स को बात करते हुए सुना है, इट फील्स वेरी प्राउड कि आपके डैड ने, आपके फैमिली ने कुछ ऐसा शुरू किया है विच हैज़ मेड अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स एंड वी ऑलवेज बिलीव कि व्हाट वी गेट वी गिव बैक। इसलिए अगर आप देखेंगे तो हमारे बेटी शो हो या ये हो, हम एज अ फैमिली भी इंजॉय डूइंग थिंग्स फॉर अदर्स। इट्स अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग और होपफुली बहुत बहुत साल होंगे जैसे FTII के बारे लोग बात करते हैं, एक दिन ITA स्कूल के बारे में बात करेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली इट गेट बिगर एंड बेटर वेरी सून। एज एन एक्टर स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहती हो? माई बेसिक टिप इन लाइफ इज़ बी बदतमीज़, बी बेशरम एंड बी नंगा। जस्ट गो ऑल आउट एंड दैट इज़ अ जॉब ऑफ एन एक्टर। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचने का काम किसी और के लिए छोड़ दिए। आप जस्ट फील करिए, आप अपना काम कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू। रोहित सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के सेलिब्रेशन के बारे में? सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा शशि जी और अनु जी को और उनके पूरी फैकल्टी को कि इतने टैलेंटेड बच्चे यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। मुझे ये एक बात हमेशा मेरे ध्यान में रहती है कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें, चाहे वो किसी कॉलेज में हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में हो, फिल्म स्कूल में हो या NSD में हो, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि आज वो दिन नहीं रहे कि आप आए और आपने एक फिल्म की, जैसे हम लोग करते थे टेलीविज़न से सीख के एक्टिंग सीखे हैं। स्वाभिमान कर करके 3 साल स्वाभिमान करने के बाद थोड़ी सी एक्टिंग आई थी, लेकिन अब वो मौका आपको मिलता नहीं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं आपको रेडी आना पड़ता है। जो भी आप बनना चाहें, चाहे वो सिंगर हो, कंपोजर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, you have to learn before you come into the trade, and I think it's fantastic that they are doing such a great job with the Indian Television Academy School. सर काफ़ी टैलेंटेड लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि हर उम्र के, हर एज के, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत ही सरप्राइज था कि वो जो 2 लोग जिनको इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, एक की उम्र कुछ 72 की थी जो गाना सीखने आई थी जब वो 70 साल की थी, और दूसरे की उम्र थी कुछ 67। वो मर्चेंट नेवी से पास आउट करने के बाद एक्टिंग सीखने आए थे और उनको आज टेलीविज़न पर काम मिल रहा है। ये आई थिंक यही तो है सीख ज़िंदगी की कि अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। You have to keep following your passion and it will definitely take you where you want to go. And more importantly, ITA has given them that platform जो पहले होता नहीं था कि चलिए भाई आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट नहीं है। एक एक्टर के लिए 70 साल की उम्र में एक्टिंग सीखना इट्स नो मीन फीट एंड आई थिंक इट्स डैम एक्साइटिंग है, फैंटास्टिक। सर एज एन एक्टर स्टूडेंट्स को और कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? एज एन एक्टर मैं टिप तो यही दूंगा कि आप जो भी करें पूरी शिद्दत से करें। यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हो सकता है कि अगर आप पूरी शिद्दत से काम करें फिर भी इतनी जल्दी आपको सक्सेस नहीं मिले। लेकिन दूसरा मैं जो कहना चाहूँगा आप लोगों को कि डोंट एवर गेट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि यहाँ पे लगे रहना पड़ता है। एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी लगे रहो मुन्ना भाई, वो हमारे लिए सबके लिए एक एंथम की तरह है, क्योंकि आज फिल्म चलती है, कल नहीं चलती है, परसों फिर चल जाएगी, यही चलता है, यही दस्तूर है इस इंडस्ट्री का। बहुत सालों तक कभी कभी लोगों को काम नहीं मिलता है, फिर 40-45 की उम्र में जाके आपको लगता है कि अरे यार, जो एक बहुत फेमस स्टोरी है नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर ने इतना थिएटर किया, ये किया, वो किया, फिल्म लेकिन उन्होंने जब की ही वॉज ऑलमोस्ट 40+, 40-45। तो मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहिए, डिसअपॉइंट मत होइए।
अपना रियाज़ करते रहिए, चाहे वो आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, जो भी हैं, आप उस काम का रियाज़ करते रहिए। और एक अंग्रेज़ी में कहावत है, यू हैव नॉट फेल्ड टिल यू स्टॉप ट्राइंग। So I want to tell all of you young students that don't stop trying ever. Keep trying, keep trying, keep trying, and once you become a good actor, God will give you that avenue to showcase your talent. And I've seen it happen in very, very dear friends of mine's lives, my family, myself, my brother. We've all gone through it. और अब God's great, काम है। सर हाल ही में मनोज कुमार जी को भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। जी जी। उनके लिए सर क्या विशेष देना चाहेंगे? मनोज जी को क्या विशेष दे, सबकी तरफ से कंग्रेचुलेट कर सकते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। और उनकी भी देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आज पेपर में कि वो खुद जाएंगे दिल्ली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके सुपुत्र मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुणाल, उनसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में थे, ये थे, वो थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, लेकिन फिर भी वो जो एक जेस्ट है ज़िंदगी जीने का, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड का बहुत ही बड़ा अवार्ड है, और खुद जा रहे हैं दिल्ली लेने के लिए। तो आई थिंक ये भी एक सीख है कि आप टिल यू डोंट हैंग योर बूट्स यू शुड बी राइडिंग। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स चर्चा करना चाहेंगे? आज आई थिंक हम लोग सिर्फ ITA तक रहते हैं ना, अगली बार सब बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे सर आज के सेलिब्रेशन के बारे में? सर एक तो ये शशि रंजन जी का स्कूल है। शशि मेरा क्लासमेट है, FTI से हम लोगों ने साथ में पास किया और काफ़ी अच्छे दिन बिताए, और बहुत ही होनहार जिसको बोलते हैं लड़का है ये, अब तो बड़ा हो गया, मेरी उम्र का है। एंड बहुत अच्छा स्कूल लगा मुझे, और स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे लगे, इतने स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए हैं। एंड इट्स अ गुड थिंग, मतलब एजुकेशन से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। सर काफ़ी टैलेंटेड लोग जैसे कि स्टूडेंट सारे के सारे थे, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे सर एज ए डायरेक्टर? अभी क्या टिप दे दिया, जो उधर देना था आपको थोड़ी दूंगा मैं, मतलब टिप क्या, अपना ईमानदारी से काम करो। एंड देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टुडे, हमारे टाइम नहीं थी इतनी। अभी यार टेलीविज़न इतना बड़ा हो गया है, सिनेमा तो है, देन वेबसाइट्स हैं जो फिल्में बन रही है, बहुत कुछ है इनके लिए। सर ऐसे भी कहा कि आपने स्टार्टिंग में भी सर बहुत स्ट्रगल किया, जैसे एडिटिंग में। भैया मैं एडिटर ही हूँ। जी जी सर। स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ेगी ना, बिना स्ट्रगल के तो आपको गोद में तो नहीं कोई दे देगा। हाँ, हम लोग को तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। हमारे बाप ज़्यादा कोई फिल्म वाले तो थे नहीं पहले से जो हम आगे बढ़ाए, तो आके मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने में मज़ा भी आता है। तो मेहनत करने के बाद जो सक्सेस मिलती है ना, उसका मज़ा कुछ और ही होता है फिर। सर हाल ही में मनोज कुमार जी को भी दादा साहब अरे फैंटास्टिक, नवाजा गया पर आउटस्टैंडिंग, मतलब इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है। और बहुत ही कमाल के इंसान हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, मतलब फिल्म मेकर, और लिखते कमाल थे। उनकी फिल्में देखो ना यार, आज भी जो है ना, मतलब सीखने को मिलता है उनसे, जितना इमोशन उनकी फिल्मों में होता है, गाने उनके, बहुत सी चीज़ें हैं। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे सर? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी काम कर रहा हूँ, शुरू करूँगा साल के एंड तक, तब तक। सर सुनने में ये भी आया कि आप जुड़वा 2 बना रहे हैं वरुण धवन को लेकर। हाँ, वो लगा हुआ हूँ मैं, अभी करेंगे, विल स्टिल टाइम टू इट। ठीक है, थैंक यू।